Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss about August 3 The Hindu Delhi edition newspaper. So first of all, we will discuss about the Haryana violence and the body, that is CRPF, which is involved in combating this violence. Then we will discuss about the adjournment sine die, what does it mean? Then we will discuss about the India-USA relationship. Then we will discuss about the Zidda peace plan which has been proposed. And then from the economy section, we will discuss about the mining law. So these are our main topic of concern. We will discuss in detail about all of these topics and also about other topics. So first of all, our news is with regard to the Haryana classes. We all know that there is a communal violence. Communal means any violence that is based on religion. For example, if there is a Hindu-Muslim conflict, then it will be a communal violence, or any violence that is based on the religion. That kind of violence is called communal violence. So here there has been an issue about there has been communal violence in the Haryana region, in specifically Gurugram region and all the nearby region. So that's why there is a lot of casualties, and for that the state has asked the CAPF bodies to come and to manage the crisis. So what we will discuss in today's analysis from this particular news, we will discuss about this particular body, that is the CAPF, or also called the Central Armed Police Force. Okay, it refers to 7 security forces in India which is coming under the MHA, or the Ministry of Home Affairs. So these 7 forces include Assam Rifles, second is BSF, or the Border Security Force, then comes the CISF, that is the Central Industrial Security Forces, then comes CRPF, that is the Central Reserve Police Force, then comes ITBP, that is the Indo-Tibetan Border Police, then comes NSG, or the National Security Guard, and the SSB, or the Sahastra Seema Bal. So these 7 forces combine to form the CAPF, or the Central Armed Police Force. Each of these 7 units, or the 7 forces, they have their own cadre of officers, and they are headed by officers of IPS rank, or the Indian Police Service rank. So just remember these details about the CAPF. Moving back to our news analysis, our second news, or the second important news, is about GST Council. We have already discussed about GST Council quite since a long time. So just read out the basics about the GST Council, through which amendment GST came into scene, and what was the amendment bill also, and what is the working of GST, who are the member of the GST Council. These things I have already explained in my previous analysis, so just read it out and revise it out. So GST Council sticks to its plan to collect 28% tax on online gaming. So this was already the news which was earlier this week. So we have already discussed about that. Moving further toward our next important article, that is coming in from the Post 97, President retained power to scrap Article 370. As we know, there has been a challenge on the center decision to scrap Article 370 in Supreme Court. So under this particular challenge, the Supreme Court held that the President's power to declare inoperative Article 370 of the Constitution, which granted special status to the Jammu and Kashmir. So here under the clause 3 of Article 370, just remember this clause, it gave President the power to notify article that is inoperative or that can be modified, but a provision was there that it is necessary for the President to do such or to scrap Article 370
only on the recommendation of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. So here clause 3 is giving power to president to scrap this particular article, article 370, which is giving a special position to the Jammu and Kashmir, but there has been a provision that it should be in accordance or with the assent of the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir. So here on this ground, the challenge has been posed in the Supreme Court. So the Supreme Court held that a constituent assembly is not a permanent body like the parliament or the Supreme Court, and no constituent assembly can have indefinite life. Hence, the Jammu and Kashmir Constituent Assembly was constituted for a specific purpose, that was to draft the constitution in Jammu and Kashmir, and it became function officio once the Jammu Kashmir was constituted or the constitution was constituted. So this provision of recommendation, as it said, that it should be necessary, but if the body is not there or it is ceased to operate, then there is no problem if the article has been scrapped. So this is a very important judgment, and here the CJI Chandrachud, he was responding to the advocate Kapil Sibal following the dissolution of article 370. So this is a very important article. Just remember the clause 3. What is the clause 3? What are the provision and what the Supreme Court held? Moving further toward our next important article, that is about the caste-based census or the caste-based survey, which will be there conducted in Bihar. It has already started its first phase, but due to some reason it was stopped. Now it will be resumed. So here caste-based census, why it is being made? Because in order to provide appropriate government scheme to a particular caste, and we can do so only by identifying the caste or their population. So that's why it is important. Now, there is also a news with regard to Odisha that it will widen the ambit of social security scheme. Odisha government has brought 50 unorganized workers in 50 different categories under the purview of the Odisha Unorganized Worker Social Security Board. Now, there are 10 categories of such worker, and in the first category, there will be street vendors, small trader, domestic workers, rickshaw pullers, and all these will be there in the first phase, and they will basically get the amount if any registered worker in this category will lose a life at the workplace, then the family member will get rupees 4 lakh, and in case there is a natural death, so they will get the assistance of 2 lakh. So just remember these important points. And one more thing, just remember this personality, that Nitin Desai was a Bollywood art director. He recently died. So just remember the name and the work with which he is associated. Moving further toward our next important article, that is coming in from the Rajasthan section, and here the term this adjourned sine die, this is important. Rajasthan Assembly adjourned sine die amid opposition ruckus. So you have to understand what is the meaning of this term adjourned sine die. Just remember about these important terminologies. Adjournment, sine die. It means that we are dismissing the sitting of assembly or parliament. It can also be applicable for parliament. So if we are dismissing the sitting of assembly or parliament for an unspecified period, then it is called adjournment sine die. It means that when house is suspended without naming any date that when it will reassemble. So it is called adjournment sine die, and the authority lies on the presiding officer. मतलब यहाँ पे कौन adjournment sine die करेगा? जो presiding ऑफिसर होगा उस हाउस का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पे स्पीकर होते हैं. राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे आपके वाइस प्रेसिडेंट या जो चेयरमैन होते हैं, दोनों ही एक ही होते हैं, तो चेयरमैन करेंगे. अगर असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर हो जाएंगे. तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो एडजर्नमेंट साइन डाई करते हैं या ऑफिस को डिसमिस करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफाइड डेट. ओके,
Now the presiding officer of a house, he can call for a sitting of the house before the date or time. At such time it has been suspended, and if that is not a case, यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया है, तो वो हो जाता है आपका adjournment sine die. Okay, moving back toward our news analysis, and here now we will discuss an important news that is coming in from the editorial section. So here two articles are very important. First one is about the trajectory of progress must change. So here the author is simply saying that we have presided over the G20 summit. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, as we all know that in 2024 there will be again लोकसभा इलेक्शंस, तो यहाँ पे उनको कैंपेन भी करना है. तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो G20 समिट इंडिया ने होस्ट किया है, ये एक बहुत अच्छा स्टेज बन गया है मोदी जी के जनरल इलेक्शन के कैंपेन के लिए. सो यहाँ पे प्रमोशंस जो है G20 का विद मोदीज पिक्चर एवरीवेयर, इट इज बीइंग वेरी सिग्निफिकेंट. सो डेफिनेटली अगर हमें प्रेसिडेंसी मिली है तो हमने ये प्रूव भी किया है कि हम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए. हम इतना इंपॉर्टेंट फोरम को अभी प्रिसाइड कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के सबसे पॉपुलस कंट्री हैं और यहाँ पे हमने G20 को प्रिसाइड किया है. तो ये हमारी एबिलिटीज को दिखाता है. नाउ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन द लास्ट 30 years it compelled G7 and the US led cabal of the western country that controls global financial institution to expand to G20. पहले सिर्फ और सिर्फ G7 के पास ये इंपॉर्टेंस था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो इंपॉर्टेंस है ये शिफ्ट होता जा रहा है G20 का. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो अब बदल रहा है. नाउ देयर हैज बीन अ सीन कि ग्लोबल साउथ जो है उनका से, इंडिया भी आपका ग्लोबल साउथ में आता है, तो इनका से जो है ये ज्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज और द ग्लोबल नॉर्थ कंट्री. So here the G20 is an impasse because US wants its member to shut out Russia and China, और क्योंकि ये आपका रशिया, चाइना, these are against the ideology of USA. तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए डेफिनेटली USA को कंट्रीज की मदद है, लाइक इंडिया एंड दोस कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, एंड दैट्स व्हाई G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम. नाउ if we want to see G20, it concentrate agenda of 90% humanities outside the G7. So here if we talk about the global governance, तो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी जो है वो एक तरीके से प्रोग्रेस की है, लेकिन इस ट्रेजेक्टरी का डायमेंशन बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो जो भी हमारा वर्ल्ड है वो अलग अलग वॉर्स में, अलग अलग आइडियोलॉजीज में बटा हुआ है. यहाँ पे मिलिट्री वॉर्स हो रही हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल और ट्रेड वेपन्स की वॉर हो रही है. तो यहाँ पे इन सब के थ्रू एक तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, अपना वेपन सेल करके या मिलिट्री वेपन सेल करके हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर वेपन सेल हो रहा है तो कुछ लोग मर भी तो रहे हैं, दे आर डाइंग अक्रॉस द बॉर्डर, क्रॉस द बॉर्डर, एंड ऑल्सो many people in Ukraine, they have to flee, यहाँ से उन्हें जाना पड़ा. तो यहाँ पे उनकी कंडीशन, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो रही है. तो एक तरफ वी आर ग्रोइंग, बट दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा अलग सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है. ह्यूमैनिटी की बात करें तो ह्यूमैनिटी कैन नॉट कैरी ऑन द वे इट इज, एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ progress must be changed to make economic growth more equitable and sustainable. इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली नो वन कैन डिनाई दिस कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारा इक्विटी लाई, मतलब सारे लोगों को इक्वल तरीके से आपका यहाँ पे अगर 100 रुपए हैं तो वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सो दैट देयर शुड बी नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड, क्योंकि यहाँ पे सब बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर ये 100 रुपए सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पावर के पास रहे और बाकी सब गरीब रहे, तो फिर इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता. तो यहाँ पे इसीलिए रियल लोगों का जो स्ट्रगल होता है, रियल पीपल का जो स्ट्रगल है उनकी लाइवलीहुड के लिए, उनकी जो छोटी छोटी जरूरतें के लिए उनके पास जो स्ट्रगल होता है,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिस्ट एक तरीके से कह रहे हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लगता कि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से पॉवर्टी रिड्यूस हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है बट बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज हैज चेयर्ड G20, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा अपना एक थीम रखा था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। It means to bring all the citizens of the world together and make the world better for everyone. So this particular theme वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो आपका थीम है ये भी आपका इक्विटेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमी की ओर इशारा करता है। और अगर हम बात करें कि अप्रोच की, कैसा हमारा अप्रोच होना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि ये जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, जो नेसेसिटीज की प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो पाए, तो देयर कैन नॉट बी अ कॉमन अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का कंडीशन अलग है, अफ्रीका का कंडीशन अलग है, ब्राजील का कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सोचे वो गलत होगा। एज सेड बाय आइंस्टाइन, ही सेड दैट following the same approach can cause madness, and to solve any systematic problem with the same approach that has caused them in madness. So that's why there is a need of new paradigm. यहाँ पे एक नए पैराडाइम की जरूरत है, नए अप्रोच की जरूरत है। 2015 में हम सबको पता है 17 यूएन सस्टेनेबल गोल्स जो हैं उसको अडॉप्ट किया गया था और बोला गया था दैट वी हैव टू अचीव दिस बाय 2030। नाउ वी हैव ऑलरेडी रीच्ड 2023। क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, रिच कंट्रीज जो हैं वो सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, और एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है रिच कंट्रीज में स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे ये जो 17 एसडीजी गोल है, ये एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीनों से रिलेट होती है। जितनी भी आपकी ये प्रॉब्लम्स है, हर कंट्री में सिमिलर नहीं है। दो ऐसा लगता है कि सिमिलर होंगी बट हर कंट्री में सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, problems of ocean are immediately life threatening to island countries but not to the landlocked countries. अगर हम बात करें किरिबाती आइलैंड की, सो किरिबाती आइलैंड जो है वहां पे ओशन का प्रॉब्लम, क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है तो ओशन का प्रॉब्लम यहाँ पे प्रोमिनेंट होगा। लेकिन अगर मैं किसी लैंडलॉक कंट्री की बात करूं तो क्या वहां पे ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंट होगा? नहीं होगा। तो कैसे हम एक ही अप्रोच के साथ इन दोनों कंट्रीज को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे वही बात की गई है कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम आर नॉट सेम इन कनाडा एंड बारबाडोस, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव अ न्यू पैराडाइम। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, एसडीजी 8 जो है वो बोलता है कि हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ डिसेंट वर्क होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी टू हैव अ डिसेंट वर्क की आपकी ग्लोबल साउथ में है कंपेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जहां पे सेम प्रॉब्लम हर कंट्री में सेम हो। यहाँ पे सबका एजेंडा अलग है, सबकी प्रॉब्लम अलग है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन, और टू फाइंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्यूशन, बिकॉज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैन नॉट फिट फॉर ऑल। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात की है ऑथर ने, मैककिंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इन्होंने अपना एक डिटेल्ड मैप बनाया है ऑन द रियलिटीज ऑफ ग्राउंड, और इस रिपोर्ट का नाम है पिक्सेल्स ऑफ प्रोग्रेस, अ ग्रैन्युलर लुक एट द ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ये आपके वर्ल्ड को डिवाइड करता है 40,000 माइक्रो रीजन्स में, और इसके स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बेसिस पे पता चला है कि यहाँ पे जो आपका इट जूम्स इन टू एग्जामिन द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द ग्राउंड विद स्टैटिस्टिकल एवरेज एट द कंट्री लेवल। और यहाँ पे इन्होंने बताया है इट अप्लाइज टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम, to compare the well-being of the people in these region, and the report concluded that the growth at the GDP of at a country level explains only 20% progress in the ground. जीडीपी हमें पता है क्या होता है, जितना भी हम प्रोडक्शन अपने कंट्री के अंदर विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, दैट इज जीडीपी। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट से पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ 20% एक्चुअल रियलिटी का हमें जीडीपी के थ्रू पता चलता है। सो दिस शोज व्हाट कि हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, दैट डजंट एक्चुअली मीन दैट वी आर ग्रोइंग।
रिमेनिंग 80% प्रॉब्लम जो है वो आपकी लोकल और स्पेसिफिक होती है। तो कभी भी अगर हम टॉप टू बॉटम अप्रोच की तरफ चलेंगे, दैट विल नेवर बी सक्सेसफुल। वी शुड ऑलवेज फोकस फ्रॉम द डाउन और द बॉटम टू टॉप अप्रोच। इंडिया ने एक मिशन प्रपोज किया है लाइफ का, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, G20 से पहले। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जितने भी आपके कोहरेंट, बेसिकली इट इज वर्किंग टुवर्ड अ अप्रोच कॉल्ड द प्रो प्लैनेट पीपल। यहाँ पे हम वेस्टफुल इकोनॉमी से यूजफुल इकोनॉमी या रिसाइक्लेबल साइक्लिकल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बेसिकली पूरे सोसाइटी के एक्शंस के बारे में बात करता है। जो आपका मिशन लाइफ है, इट एम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल पीपल, आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं, अगर वो मिशन लाइफ को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे, तब यहाँ पे आपका मिशन लाइफ सक्सेसफुल होगा। एंड वी शुड ऑलवेज फोकस टुवर्ड दीज नॉर्मल पीपल। जो नॉर्मल पीपल है उनका स्टेक, उनका बात रखना चाहिए, और जब ये एक्चुअली में इंप्रूव करेंगे तब हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, और साथ में हमारा एक्चुअल ग्रोथ भी होगा। सो वी शुड फोकस ऑन व्हाट? वी शुड फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस। अभी भी इंडिया में लोकल गवर्नेंस ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास G20 समिट एट प्रगति मैदान। साथ में यहाँ पे उन्हें लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, सिटीजन्स की एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए, ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पे इंडिया की इमेज अच्छी करनी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। यहाँ पे बेसिकली ऑथर ये कह रहे हैं कि दिस इज प्राइम मिनिस्टर्स मोदी विजिट in the Washington in June 22, 2003. It was historic because the first for an Indian head in the state in 14 years and only the third for an Indian leader in 75 years since Indian independence. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर विजिट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि देयर हैज बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ये इंडिया का आदत है कि इन्होंने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। किस किस के साथ साइन किए हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किए हैं, यूरोपियन यूनियन, यूके और कनाडा के साथ अभी साइन करेंगे। देयर हैज बीन नेगोशिएशन, बट यूएई और आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसमें टैरिफ्स कम लगते हैं और देयर इज मोर और लेस, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होता है, टैरिफ कम लगते हैं, और यहाँ पे आपका फ्री टाइप का ट्रेड एग्रीमेंट होता है। बट यूएसए के साथ हमने कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। नाउ this particular problem, this is not a problematic scenario because we have a different kind of relationship with USA. अब USA इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है इंडिया में? Because it has to counter China and Russia dominance. That's why USA is giving so much of incentives or so much of cooperation with the Indian citizens or with the India as a whole. So here if we talk about US approach, तो इन्होंने कोई FTA तो साइन नहीं किया है, बट इन्होंने अलग से यहाँ पे कुछ कॉपरेशन किया है जिसमें आपका TPF और द ट्रेड पॉलिसी फोरम, फॉर एग्जाम्पल देयर हैज बीन exchange of the mangoes and pomegranate for India in exchange for the cherries, hay and fox for the US. तो यहाँ पे आपका बायलेटरल तरीके से ट्रेड पॉलिसी फोरम को इन्वॉल्व किया गया है कि आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या कुछ प्रोडक्ट्स के लिए देयर विल बी अ ट्रेड कंसेशन, दैट इज द ट्रेड पॉलिसी फोरम विद यूएसए। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इंडिया ने एफटीए किसके साथ में साइन किया है, किसके साथ में नेगोशिएशंस चल रहे हैं, what is the TPF or the trade policy forum and with which country we are having such relationship. Only this much is important from this particular article. Moving further toward our next important article that is coming in from the text and context section. Here basically Saudi Arabia is set to host Ukraine, US and some European countries and major developing countries which include India and Brazil for the peace talk of the Russia and Ukraine war. So there has been 500 days of war between Ukraine and Russia. 17 months हो गए हैं, अभी तक ये वॉर स्टॉप नहीं हुआ है एंड देयर इज नो कंक्लूजन।
तो यहाँ पे अब जो आपका जिद्दा में सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है एक पीस टॉक, एंड होपफुली कि ये सक्सेसफुल रहे, बट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अगस्त 5 और 6 में ये टॉक कंडक्ट होगा जेद्दा में, इन द रेड सी पोर्ट सिटी ऑफ द जेद्दा। सो जस्ट रिमेंबर द लोकेशन। अब ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे आपका पीस टॉक करवाने की या कंक्लूड करवाने की बात हुई है। इससे पहले भी 2 बार ऑलरेडी ये बात हो चुकी है, और यहाँ पे सबसे पहले बेलारूस में ये पीस टॉक हुई थी डायरेक्ट नेगोशिएशंस की, और उसके बाद टर्की में हुई थी, लेकिन दोनों में ही कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। अब इसके अलावा पहले the Russia and Ukraine agreed for the Black Sea Grain Initiative और Black Sea Green Deal. We have already discussed about it कि अब रशिया बैक ऑफ कर गया है यहाँ से, और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था क्या कि जो आपका ग्रेन डील है या जो आपका ग्रेन पास होती है, बिकॉज यूक्रेन इज अ फूड बाउल और इट इज द ग्रेट बाउल फॉर दीज ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो यूक्रेन है वो मेजर एक्सपोर्टर था, तो इसीलिए इस ग्रेन का प्रॉपर फ्लो हो पाए तो रशिया और यूक्रेन ने दोनों ने मिलकर ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन किया था। बट नाउ रशिया बैक्ड ऑफ, और यहाँ पे ये जो आपका डील है ये भी आपका खत्म हो गया है। सो यहाँ पे इसी डील्स के अगेंस्ट वी ऑलरेडी नो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कैजुअलिटी इन दिस पर्टिकुलर वॉर। तो यहाँ पे इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली आपका ये टॉक पीस टॉक करवाया जाएगा, और पहले चाइना में भी आपका ऐसा टॉक करवाने की बात की गई थी, बट जितने भी आपके यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज हैं, दे सेड दैट चाइना इज टुवर्ड प्रो रशिया और इट्स अप्रोच इज टुवर्ड प्रो रशियन अप्रोच, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो पीस टॉक था ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही यूक्रेन ने ना ही अदर कंट्रीज ने। तो अब देखते हैं 5-6 अगस्त को क्या होता है और ये आपका कितना हद तक कंक्लूड हो पाता है। Moving further toward our next important topic, that is coming in from the national level, and here we will discuss about a very important national issue, that is in news that government will kick off contractual dispute settlement scheme. This is a news from economics. विवाद से विश्वास स्कीम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये आपका डिस्प्यूट को सेटल करेगा बिटवीन द गवर्नमेंट एंड वेंडर्स। तो यहाँ पे आपका सेंटर ने लॉन्च किया है एक सेटलमेंट स्कीम फॉर द कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स विद द वेंडर और सप्लायर टू द गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग, और यहाँ पे डेडलाइन सेट किया गया है अक्टूबर 31, और यहाँ पे इन सबको अपना जितने भी वेंडर्स हैं दे हैव टू सबमिट देयर कंसिडरेशन। नाउ विवाद से विश्वास और द कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम, ये आपका बेसिकली ऐसा स्कीम है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका जितने भी आपके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं वो आपके सेटल हो सकते हैं थ्रू टॉकिंग और थ्रू द आर्बिट्रेशन। और यहाँ पे ये दोनों बात करेंगे, गवर्नमेंट अपना साइड से रखेगा बात कि इतना टैक्स पे नहीं हुआ है या इतना आपका सेटलमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पे वेंडर्स अपनी तरफ से रखेंगे। सो जस्ट रिमेंबर अबाउट द विवाद से विश्वास स्कीम। Okay, it has introduced a settlement scheme for the domestic contractual workers, vendors, और यहाँ पे 85% of the net amount will be awarded government to offer contractual settlement amount of up to 85%. So this is an important scheme. The next news is about the India passes a law allowing private firm to bid for and mine lithium. सो हेयर इंडियन पार्लियामेंट हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा है, बहुत ज्यादा लिथियम का न्यूज आया था। देयर हैव बीन अ रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, इन सारे एरियाज में हमें लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी ऑक्शन को और माइनिंग को फॉर द रिजर्व्स ऑफ द लिथियम एंड अलोंग विद द अदर मिनरल। तो यहाँ पे आपका बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और यहाँ पे आपके प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो बिड डालेंगे फॉर द माइनिंग, और उसके बाद यहाँ पे ये माइनिंग होगा। सो नाउ द लिथियम एंड all the other mineral which will be allowed in this particular scheme, it will be removed from the previous list of the atomic mineral. अगर कोई भी atomic mineral में आपका added होता है तो ये जो atomic mineral होता है इसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट माइन कर सकती है, बट जब यहां से ये एडिट हो जाता है लिस्ट
यहाँ पे ये नहीं रहता तो डेफिनेटली इसको प्राइवेट सेक्टर भी माइन कर सकती है। तो यहाँ पे बिड डालना पड़ेगा और उसके बेसिस पे जो आपका गवर्नमेंट है वो बताएगी कि किसका बिड सबसे हाई सबसे लोएस्ट है और उसके बेसिस पे मिनरल वो माइन कर सकते हैं। तो लिथियम रिजर्व आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी मिला है और उसके अलावा आपका कर्नाटका वाले एरिया में भी पाया गया है। कौन कौन से अदर मिनरल होंगे जो आपके माइनिंग के लिए ऑक्शन के लिए ओपन किए जाएंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइटेनियम, बेराइट, नायोबियम एंड जिरकोनियम। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी आपका बिड डाल सकते हैं और वो भी आपका माइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिली होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है बुलेट पॉइंट में उसका नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।